اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو انٹراگیٹیو سینٹینسز کے انڈائریکٹ بنانا سکھاؤں گا۔ تو یہ ہمارا انڈائریکٹ سیریز کا چوتھا لیکچر ہے۔ تو اس سے پہلے میں 3 لیکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں، تو ان تینوں کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ اگر آپ ان لیکچرز کو پہلے دیکھ لیں تو آپ کو ایزیلی یہ بھی لیکچر سمجھ آ جائے گا، کیونکہ اس میں سے جو دوسرا لیکچر ہے اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ سارے رولز بتائے کہ کون کون سا رول کیسے اپلائی ہوتا ہے کسی بھی ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریکٹ بنانے کے لیے۔ اس کے 6 سے 7 ہیں، اس میں سے ہاف جو رولز ہیں وہ سب میں سیم ہیں، جبکہ جو باقی ہاف ہیں وہ تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی 2-3 رولز ہیں جو سٹارٹ والے تھوڑے سے چینج ہیں، باقی سیم ہے۔ جیسے کہ سینٹینس چینج ہوتا ہے، اس کے بعد ٹائم اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے، پروناؤن چینج ہوتا ہے، یہ سیم ہے پانچوں کے پانچوں سینٹینسز کے اندر۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اتنا مشکل نہیں ہونے جا رہا کہ سوالیہ تو اس میں کیا ہوگا۔ اس میں بھی 2 ٹائپ کے فقرے ہوتے ہیں اور میجر تھوڑی تھوڑی سی چینجنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹراگیٹیو سینٹینسز ہوتے کون سے ہیں۔ یہ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کسی سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں یہ سینٹینسز، ایک ہوتا ہے WH کوشچن اور دوسرا ہوتا ہے یس نو کوشچن۔ اب جو WH کوشچن ہوتے ہیں یہ ایسے فقرے ہوتے ہیں جو سٹارٹ ہوتے ہیں WH والے ورڈ سے، یعنی ہو، وچ، وین، ویئر اور ہاؤ، وائی، اس سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اور جو یس نو کوشچن ہے یعنی وہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر ہیلپنگ ورب، ایگزیلری ورب جس کو کہتے ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، جس کے اندر تمام 12 ٹینس کے جو ہے ہیلپنگ ورب ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈل ورب آ جاتا ہے، کین، کوڈ، مے وغیرہ۔ اس کے اندر جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں ہی آتا ہے، تب جا کے یہ کوشچن بنتا ہے۔ یہ ہیلپنگ ورب جب کسی بھی سینٹینس کے سٹارٹ میں لگتے ہیں تو وہ کوشچن بن جاتا ہے۔ تو ایک جنرل سی بات ہے کہ جو بھی کوشچن والا سینٹینس ہوگا اس کے آخر پہ کوشچن مارک لگایا جائے گا، چاہے وہ WH کوشچن ہو چاہے وہ یس نو کوشچن ہو، اس کے آخر پہ کوشچن مارک لازمی ہوگا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے کہ اس میں کون کون سی چینجنگز آئیں گی۔ تو سب سے پہلا جو رول ہے وہ ہوتا ہے رپورٹنگ ورب کا۔ تو یاد رکھنا کہ انٹراگیٹیو سینٹینسز کے اندر جو رپورٹنگ ورب ہے اگر وہاں پہ ہوا سے ٹو، ٹیل وغیرہ ہوا تو اس کو ہم آسک میں، اور جبکہ سیڈ ٹو یا سیڈ ہوا تو اس کو ہم آسکڈ میں چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ آسک اور آسکڈ میں چینج کریں گے جب بھی ہم سوالیہ فقرے کے انڈائریکٹ بنائیں گے۔ تو رپورٹنگ ورب کے بعد جو سیکنڈ اس کا رول ہوتا ہے وہ انورٹڈ کاماز کو ختم کرنے کا ہوتا ہے، کہ انورٹڈ کاماز کو جب ہم ختم کریں گے تو اس کو کس سے ریپلیس کریں گے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ نارمل جو ہمارے پاس مثبت فقرے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم انورٹڈ کاماز کو ڈیٹ کے ساتھ ریپلیس کرتے ہیں، لیکن انٹراگیٹیو سینٹینس کے اندر سوالیہ فقروں کے اندر کبھی بھی ہم ڈیٹ یوز نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کے اندر انڈائریکٹ بناتے ہوئے ڈیٹ تو بالکل کنجنکشن آ ہی نہیں سکتا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ 2 ٹائپس کے فقرے ہوتے ہیں، ایک ہے WH کوشچن اور دوسرا ہے یس نو کوشچن۔ جب فقرہ ہوگا WH کوشچن والا تب انورٹڈ کاماز کو ختم کرنے کے بعد کچھ بھی وہاں نہیں لگائیں گے، وہاں ڈیٹ وغیرہ یا کچھ بھی نہیں لگائیں گے، سیدھا سادہ ہم جب آسکڈ لکھیں گے یا پھر آسکڈ فرام کوئی بھی وہاں پہ اگر دیا گیا ہوگا نام، ناؤن، پروناؤن وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو کوشچن ہوگا اسی طرح ہی اس کو پازیٹیو بیان کر دینا ہے، یعنی وہاں پہ کوئی بھی درمیان میں کنجنکشن نہیں لگانی کہ ہم رپورٹنگ اور رپورٹڈ ورب کو اکٹھا ملانے کے لیے کنجنکشن کوئی بھی یوز نہیں کریں گے۔ وہاں پہ آسکڈ کے بعد اسی طرح ہی وہی جو کوشچن ہے لکھ دینا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو مثبت فارم میں لکھنا ہے۔ انڈائریکٹ بناتے وقت ہم کوشچن نہیں کریں گے، ہم وہاں پہ اس کو اسرٹیو، افرمیٹیو یعنی مثبت فقرے کے طور پہ لکھیں گے، سمجھ آ گئی۔ تو اب بات آتی ہے کہ اگر وہاں پہ یس نو کوشچن ہوا، یعنی اگر وہاں پہ کوئی ایسا سینٹینس ہوا جو کہ ہیلپنگ ورب سے سٹارٹ ہو رہا، تو اس کے جب ہم انورٹڈ کاماز کو ختم کریں گے تو وہاں پہ ہم کنجنکشن ایف یا پھر ویدر یوز کریں گے۔ تو یاد رکھنا یہاں پہ ایف یا ویدر یوز کریں گے۔
दोनों के अंदर जब भी हम क्वेश्चन को लिखेंगे इनडायरेक्ट के अंदर तो वो हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखना। एंड यू नो कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो उसी तरह ही जब हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे इनडायरेक्ट के अंदर तो इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, लास्ट पे क्या फुल स्टॉप लगाएंगे इसका। तो जो नेक्स्ट चेंजिंग होती है वो होती है टेंस की, कि जो सेंटेंस है वो फिर इनडायरेक्ट बनाते वक्त कौन से टेंस में लिखा जाएगा। तो ये सेम रूल है, सब में बराबर होता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो हुआ पास्ट इंडेफिनेट का, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज होगा और वो अकॉर्डिंग टू रूल होगा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो स्केच है ये मैंने पहले आपको 2-3 बार बताया पिछली वीडियोस के अंदर कि इस हिसाब से चेंजिंग होगी कि अगर बाहर हुआ पास्ट इंडेफिनेट का तो अगर अंदर हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो पास्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट वाला पास्ट परफेक्ट में एंड परफेक्ट कंटिन्यूस वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह जो है इसका पास्ट का पास्ट इंडेफिनेट वाला हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस वाला हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम रहते हैं। जबकि जो होते हैं फ्यूचर वाले उसमें आपको पता है कि जो विल और शैल होता है उसको हम वुड और शुड में चेंज कर देते हैं, उसके अलावा और कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं होती है। अब यहाँ पे आप एक ख्याल रखना, आपने इनके हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है कि ये कौन से टेंस का फिक्र है। यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं डिड, डू और डज के हिसाब से। अगर फिक्रे के स्टार्ट में डू और डज हुआ तो पक्का पता चल जाएगा ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो हम जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो हम पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे। अगर वहां पे वो डिड से स्टार्ट हो रहा है फिक्रा तो वो होगा जाहिर बात है पास्ट इंडेफिनेट का, और जब उसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट के अंदर। समझ आ गई? अगर वहां पे हुआ विल और शैल वो होगा फ्यूचर का, तो उसको हमने वुड और शुड में चेंज कर देना है, यानी उनको मॉडल वर्ड्स में चेंज कर देना है। समझ आ गई? टेंस इस हिसाब से चेंज होगा, ये है सब में सेम होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है प्रोनाउन चेंज का, तो वो भी इसमें सेम है। प्रोनाउन के जो अगर हुआ फर्स्ट पर्सन वो होगा सब्जेक्ट के साथ चेंज, सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, जबकि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्रोनाउन चेंज की। तो लास्ट पे जो है वो आता है टाइम स्पेसिफिक वर्ड, वो भी सेम उसी तरह ही होगा जैसा कि हमने पिछले फिक्रों में किया है, पिछले टाइप के जो इनडायरेक्ट है उनमें किया है। जैसे दिस को डैट में, टू नाइट को डैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे एंड यस्टरडे को द प्रीवियस डे। इस हिसाब से ये सेम होंगे। यानी जो मैंने ये 3 आखिर वाले रूल्स बताए हैं ये सब के अंदर सेम होते हैं, टेंस चेंज के, प्रोनाउन चेंज के और टाइम स्पेसिफिक वर्ड चेंज के, ये तीनों रूल सेम होते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि फिक्रों के अंदर हम चेंजिंग किस तरह से करेंगे। तो पहला फिक्रा लेते हैं जिसके अंदर हम यस नो फैमिली वाले लेते हैं, यानी उसके अंदर यस नो क्वेश्चन होगा। ही सेड टू मी आर यू वर्किंग टूडे। अब देखें यहाँ पे टूडे वर्ड आ गया, ये टाइम स्पेसिफिक वर्ड, यानी इसको भी हम चेंज करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके अंदर हमने देखना है कि जो बाहर रिपोर्टिंग स्पीच है कौन से टेंस की है। ये आपके सामने है, यहाँ पे सेड है दूसरी फॉर्म, इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनेट की है। तो इसका मतलब जब ये पास्ट इंडेफिनेट की तो अंदर पक्की चेंजिंग आएगी। अब उसके बाद हमने देखना है कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, वो सेड टू है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में। तो देखें यहाँ पे हम लिखेंगे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमर्स को देखते हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स हुए यस नो क्वेश्चन में तो हम उसको इफ में करते हैं, अगर हुए WH वाले में तो उसको हम चेंज किसी में भी नहीं करेंगे, उसको एग्जेम्प्ट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे आर है यानी हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यस नो क्वेश्चन वाले हैं। तो अब हम इन्वर्टेड कॉमर्स को इफ या वेदर के साथ रिप्लेस कर देंगे। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखें यहाँ पे आर यू वर्किंग टुडे, तो ये कौन सा फिक्रा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का।
تو प्रेजेंट कंटिन्यूस का फिक्रा चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे सवालिया के तो वो असर्टिव में बनेगा, यानी मस्बत में बनेगा। अब यहाँ पे सवाल के हिसाब से नहीं पूछना कि आप कहीं वाज आप सब्जेक्ट से पहले लगा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब उसने मुझसे कहा है, यानी ही सेड टू मी। देख ले वहां पे मी आ रहा है, आर यू। अब यहाँ पे जो यू यूज किया गया है प्रोनाउन, वो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी। अब देखें यहाँ पे गौर करना आप, जो यू है ये है सब्जेक्टिव हालत और जो मी है वो है ऑब्जेक्टिव हालत। और जो प्रोनाउन चेंज हो रहा है उसका केस, उसकी हालत हम यूज करते हैं। तो यू है यहाँ पे सब्जेक्टिव, जब मी से चेंज होगा तो इसकी भी सब्जेक्टिव हालत लिखेंगे। तो मी चेंज हो जाएगा आई के अंदर, यानी इसकी सब्जेक्टिव हालत। यू चेंज होगा मी में तो इसकी सब्जेक्टिव हालत आई लिखेंगे। तो आ जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई। अब वाज आएगा, क्यों? क्योंकि हम इसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और आई के साथ वाज ही आता है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज, आगे उसी तरह आ जाएगा वर्किंग। अब टुडे जो है टाइम स्पेसिफिक वर्ड, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, तो आ जाएगा दैट डे। तो फिक्रा बन जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग दैट डे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारी होगी WH क्वेश्चन की। तो देखें, ही सेड टू अली व्हाट डिड यू डू। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेड टू जो है ये देखें पास्ट इंडेफिनिट का है, तो अंदर वाली चेंजिंग इसका मतलब लाजमी होगी। और सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड के अंदर, तो ही आस्क्ड अली, यहाँ तक तो आ गया। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे WH क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को जब हम खत्म करेंगे तो उसकी जगह कोई भी वर्ड नहीं लिखेंगे, उसको किसी के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। और जो WH वाला क्वेश्चन वाला जो WH वाला वर्ड होगा उसको उसी तरह लिखेंगे। वहाँ पे इफ या वेदर कोई चीज नहीं लगाएंगे। इस बात का सिर्फ खास ख्याल रखना है कि उसको असर्टिव सेंटेंस में लिखना है, क्वेश्चनिंग के सेंस में नहीं लिखना। तो ये बनेगा ही आस्क्ड अली। अब व्हाट उसी तरह आ जाएगा। अब डिड से क्या शो हो रहा है? डिड से शो हो रहा है कि पास्ट इनडेफिनेट का, तो ये चेंज होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो आ जाएगा व्हाट ही हैड डन। अब यहाँ पे ही कैसे आया? अब देखें यहाँ पे उसने यू यूज किया है। यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और ये चेंज होता है किससे? सब्जेक्ट के साथ। इसमें क्या है? अली। तो अली चेंज होगा, उसका जो प्रोनाउन होगा ही के साथ, तो यहाँ आ जाएगा ही। व्हाट ही हैड जो है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और हैड के साथ हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर आती है थर्ड फॉर्म। तो ये फिक्रा बन जाएगा ही आस्क्ड अली व्हाट ही हैड डन। तो लास्ट एग्जांपल हमारी रहती है फ्यूचर टेंस की, उसके अंदर विल और शैल को हमने चेंज करना है वुड और शुड में। तो देखें, ही सेड टू हिज फ्रेंड शैल वी गो टू पिकनिक। अब देखें यहाँ पे बाहर का फिक्र है पास्ट का, तो अंदर चेंज होगी किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, यहाँ तक तो आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाना है, तो यहाँ पे आ गया इफ, क्योंकि ये क्वेश्चन यस नो वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने इफ लगा दिया। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि क्वेश्चनिंग के हिसाब से नहीं लिखना, इसको असर्टिव लिखना है, असर्टिव। अब यहाँ पे उसने किया था वी यूज। वी यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। अब देखें उसने वी यूज किया कि इसका मतलब वो है जमा, एक ग्रोह है। तो ग्रोह के लिए क्या यूज किया जाता है? दे। और यहाँ पे जो वी है वो यहाँ पे यूज किया गया है सब्जेक्टिव केस में। तो ही जब वो की जमा होगी दे, तो उसको भी हम सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ दे। अब शेल को शुड में चेंज करेंगे, दे शुड, आगे उसी तरह आ जाएगा गो टू पिकनिक। तो लास्ट पे क्वेश्चन मार्क खत्म कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे
فل سٹاپ کے ساتھ. تو یہ تھا ہمارا تیسرے ٹینس کا ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کا لیکچر. تو جو بقایا 2 ٹینس رہ گئے اس کے لیکچر کے جو لنکس ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے ترتیب سے نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.